did realize there's a lot of things happening about transacting those assets, the crypto assets, which we don't recognize as currency. Because currency is that which is backed by a bank, the central bank of the country or the government of that country. So that is yet to happen in our country, and it is going to happen sometime this year. But because the volumes of such transactions outside of this was fairly huge, we also wanted to be sure that, and since there was no regulatory mechanism looking at them, we wanted to make sure money is being, or value of assets being transacted, if they are transacted in an unregulated environment, we were not sure if the, let us say, the FATF's money trail, as they say, travel route, travel line, is being tracked at all. And we were not even sure as to how we can keep a trail following of these transactions which were happening. After all, these were electronic codes eventually. So we wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%, and over and above that, there is a 1% tax deduction at source, which is also imposed on every transaction. So through that, we'll be able to know who's buying and who's selling it. And that 1% is not an additional tax over the 30% that I've imposed. It is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person is expected to pay. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. So we wanted to be sure when there was no regulation happening, these activities which were becoming now fairly extensive are kept an eye on, and there should be a financial implication on them, and therefore the tax. It wasn't as if we have legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for the sovereign, and that is why we've done this. नमस्कार बहनों और भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रिप्टोनियन लर्नर में, जहां मिलेगा आपको बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, एयर ड्रॉप्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर। तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है पूरा, जैसा कि आपने वीडियो हमारा जो है देख ही लिया है, जो हमारी एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने क्या क्या बात बोली हैं आईएमएफ में जाकर। तो उसके ऊपर छोटा सा एक एलिब्रेशन वीडियो होगा, डिस्कशन होगा छोटा सा, कि हम क्या सोचते हैं और गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो फटाफट से चलते हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है, अनरेगुलेटेड है। तो हम भी मान रहे हैं कि अभी बहुत से देशों में इसको लेजिटिमेट माना नहीं गया है, बहुत से देशों में नहीं माना गया है इसी चीज़ को, बहुत से देशों में इसको लीगल कर भी दिया गया है। लेकिन फिर भी इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिस्क हैं इसमें, मैं भी मानता हूँ, हम भी मानते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेरर फंडिंग में यूज़ हो रहा है और इलीगल जो काम है उनमें हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कैश नहीं यूज़ होता है तो बात कीजिए कि कैश यूज़ नहीं होता। जिस इंसान को जिसकी जो मंशा ही गलत है, तो वो तो कैसे भी कर लीजिए। अगर आप 30 क्या आप 90% या 50% भी टैक्स लगाएंगे, तो भी वो इसी रास्ते को पकड़ेगा और इसी चीज़ को करते हुए ट्रांजेक्शन करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या जो भी करना चाहता है वो करेगा ही करेगा। इससे क्या होगा, आम जनता है जो वो परेशान होगी और वो इस चीज़ को छोड़ देगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इस बाद में भी इसी रूट को अपनाएंगे और अपना जो फंड है वो इधर से उधर करेंगे। तो ये आपका जो मैं मान रहा हूँ कि ये सोचना थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि जो लोग अगर टेरर फंडिंग या कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कभी रुकने वाले नहीं है ये चीज़, क्योंकि उनकी मंशाई यही है, वो यही करेंगे। तो जो यही अपना रास्ता अपनाएंगे, क्रिप्टो से करिए या फिर किसी हवाला के थ्रू से करिए,
कैसे भी वो यही चीज़ करेंगे। लेकिन जो इसके आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपने इस पर 30% टैक्स लगाया है। एक नॉर्मल सा इंसान जो 10,000 रुपये लगा रहा है इसमें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या एक नया इन्वेस्टर है, या मान लीजिए कि ट्रेडिंग करने के लिए आया है, शुरू शुरू में 10,000 के ऊपर वो अगर 5,000 का भी प्रॉफिट देता है तो 1,500 रुपये तो उसके वैसे ही चले जाएंगे 30% टैक्स में। और आप बता रहे हैं कि टी डी एस हम रिकनसाइल के लिए डाल रहे हैं इसमें। तो रिकनसाइल के लिए आप 0.25% भी आप सेट कर सकते थे, या और भी कम, और भी ज़्यादा उधार हो जाए तो 0.1 भी कर सकते थे, आपका वहाँ से भी रिकनसाइल हो जाता। आपने इसमें यह भी क्लियर नहीं किया है कि हर ट्रेड पे रिकनसाइल करेंगे कि सिर्फ विड्रॉ पे रिकनसाइल करेंगे आप लोग। आपने इसमें यह भी बोल दिया है कि ये टेरर फंडिंग में यूज़ होता है और अनरेगुलेटेड है। हम भी मान रहे हैं कि अनरेगुलेटेड है, और अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। फ्यूचर में छोटा सा मार्केट है, बहुत ही छोटा सा मार्केट है, तो आपको इसको ग्रो करने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए आप लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है उससे शुरू के 10 सालों में। तो ये जो इंडस्ट्री ये भी बहुत छोटी है, इसके लिए भी आप ऐसा ही कुछ सोच सकते थे। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। मैं मान रहा हूँ कि अभी इसके कई कॉन्सेप्ट ओपन नहीं हुए हैं, नहीं खुले हैं। तो आप ये कह सकते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए। आप बोल रहे हैं कि हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैडम कि आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो वो कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, और जो आपको इस तरह का अप्रोच दे रहे हैं, जो एक नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं पूरी तरह से गवर्नमेंट को, कि इसका पूरी तरह से इसको वो ही ख़त्म ही कर देंगे। हम जी बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लेजिटिमेट भी नहीं करेंगे और इसको चलने भी नहीं देंगे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है वो मूव कर चुके हैं दुबई। आपने न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि जो निश्चल शेट्टी है और जो इनके सीईओ हैं वजीरक्स वगैरह के को फाउंडर्स हैं, वो सब के सब अपनी फैमिली के साथ में दुबई मूव कर चुके हैं और अपना ऑफिस भी वहाँ पर मूव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया में इस चीज़ का अप्रोच अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है किसी भी अर्थ में। दूसरे देशों को देखेंगे तो वो लपक के फटाफट से न्यू टेक्नोलॉजी को लेते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों पिछड़ते हैं, क्यों थोड़ा सा इस चीज़ को लेके डरते हैं। और जब पूरी दुनिया में वो सिद्ध हो जाती है ये चीज़ कि हाँ अब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तब हम उसके बाद में कहीं और से मांगने की एक वो रखते हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी अब हमें मिलनी चाहिए, हम भी इस चीज़ का सहारा लेंगे। तो हम पहला ही क्यों प्रयास ना उठाएं इस चीज़ पर। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। बाकी बात करें कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के नाम से जोड़कर ही ना देखिए, इसके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी हैं बहुत से, उन पे भी गौर करिए। नेगेटिव छोड़ दीजिए, उन पर आप रेगुलेट भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेगुलेट मत करिए, रेगुलेट करिए, लेकिन इस चीज़ को आप इस तरह से बाइंड मत कीजिए कि टैक्सेशन लगा लगा के और हम यहाँ पर ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे। लेकिन क्योंकि जो लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा, मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है 1% 2% हो सकता है इसमें होगा, ज़रूर होगा, 5% भी होगा, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है गवर्नमेंट, मतलब इस चीज़ के गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से। वो अभी भी इसी चीज़ को लेंगे या इसी और तरीके से करेंगे या इस तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ें रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स एक ट्विटर हैशटैग है, उसको आप चलाइए, जो अभी चल भी रहा है। मैं भी करता हूँ और आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं भी डालता हूँ और आप पे इस पर रिट्वीट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं फटाफट से। थैंक यू, धन्यवाद।